Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I am here to tell you about the biography of a woman Sahabiya radiyallahu ta'ala anha, whose name was Umama radiyallahu ta'ala anha. She attended the Battle of Uhud with her husband Hazrat Zayd bin Asim and two sons Hazrat Umama and Hazrat Abdullah radiyallahu ta'ala anhum. At first, she used to give the Mujahideen water to drink, though after seeing the Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam being attacked physically by the kuffar, she picked up the digger and stood before the being injured on her head and neck because of this. Then the wretched Kafir Ibn Qaymiyah was attacking Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam with his sword. Umama radiyallahu ta'ala anha stepped forward to shield the Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam from his attack, using her body to receive the strike and sustained injury to her shoulder. She then lifted a sword as well and struck Ibn Qaymiyah on his shoulder. Due to wearing two armor guard at the time, the sword could not injure him. Hazrat Abdullah radiyallahu ta'ala anhu, the son of Sayyida Umama radiyallahu ta'ala anha, narrates, "A Kafir wounded me in the Battle of Uhud, causing a wound which bled profusely. Seeing this, my mother, Sayyida Umama radiyallahu ta'ala anha, instantly rushed towards me and tore a piece of her cloth and tied it around the wound. Thereafter saying, 'Oh my son, stand up and go into the jihad again.' Incidentally, the same Kafir who injured me was now within close proximity to Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam, intending to kill him. The Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam said to my mother, 'Oh Umama, look, it is the same Kafir who attacked your son.' My mother immediately drew a sword and struck the Kafir with such force in his legs that he immediately fell to the ground, unable to move, dragging himself upon his buttocks. He then escaped as fast as he could." The Holy Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam saw this and smiled, saying, "Oh Sayyida Umama, you should be grateful to Allah subhanahu ta'ala that He has granted you the strength to participate in jihad." My mother then said to the Prophet Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, "Make dua that we are allowed to be your servants in Jannah." He then made the following dua: "Allahumma ja'alhum rufaqa'i fil Jannah." Oh Allah subhanahu tabaraka wa ta'ala, make all of them my companions in Jannah. After this, Sayyida Umama radiyallahu ta'ala anha would openly say, "I do not fear facing even the biggest calamity in the world after this dua of Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam." جنگ احد میں مسلمان عورتوں نے جو خدمت، جو ایثار، جو قربانی پیش کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کس قدر محبت اور الفت تھی. ان کا تعلق نبی کریم سے
कितना गहरा था। आइए उनमें से एक का मैं आज जिक्र करना चाहता हूं, जिनका नाम हजरत उम्मे उमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। हजरत उम्मे उमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा और इनके शोहर हजरत ज़ैद बिन आसिम और इनके दो लख्ते जिगर हजरत उमारा और हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये जंग उहद में शरीक होती है। हजरत उम्मे उमारा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों की खिदमत में लग जाती है, मशकीजा उठाती है, पानी पिलाती है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि काफिरों ने, मुशरिकों ने नबी पर वार करना शुरू कर दिया है, तो मशकीजा फेंकती है, पानी पिलाना छोड़ती है और दौड़ते हुए आपके आसपास इर्द गिर्द ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। हजरत उम्मे उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती है कि मुसलमान हजीमत खाकर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने से भाग रहे थे, तो मैं और मेरा बेटा उमारा दोनों आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द आसपास ढाल बनकर खड़ी रही, यहां तक कि काफिरों के, मुशरिकों के हर वार और हमलों को डिफेंड करती रही। काफिरों मुशरिकों ने इतना वार किया, इतना हमला किया कि उनका डिफेंड कभी तलवारों के जरिए करता, कभी अपने बदन से, कभी अपने बाजुओं से डिफेंड करता। और इस दौरान मुझे 13 जख्म लगे। एक जख्म तो इतना शदीद और इतना गहरा था कि 1 साल तक वो जख्म रहा। लोग पूछते कि ये जख्म तुझे किसने पहुंचाया, तो बयान करती है कि ये जख्म मलऊन काफिर इब्ने कैमिया ने पहुंचाया। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर मुतअद्दिद वार किए और उन वार को मैंने कभी तलवारों से डिफेंड किया, कभी अपने जिस्मों से, कभी अपने बाजुओं से किया। और लेकिन एक वार इतना सख्त मेरे जिस्म में लगा कि ये साल भर तक इसकी तकलीफ, इसकी शिद्दत मुझे सताती रही। और मैंने भी मुतअद्दिद उन पर वार किया, लेकिन वो 2 जिरह पहनकर थे, जिसकी वजह से मेरे वार कारगर साबित ना हुए। हजरात, बयान करती है कि काफिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वार करने लगे। मैंने अपनी तलवार से उनके घोड़े पर ऐसा वार किया कि उनका घोड़ा गिर पड़ा और साथ ही साथ वह काफिर भी लड़खड़ा कर गिर पड़ा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे बेटे को बुलाया और फिर मैं और मेरे बेटे दोनों मिलकर उस काफिर को कत्ल कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक काफिर ने मुझे ऐसा जख्म पहुंचाया कि जिस जख्म से इस कदर खून बहने लगा कि खून रुकने का नाम ही नहीं लेता था। जब मेरी वालिदा ने देखी तो मेरी तरफ दौड़ पड़ती है और अपने कपड़े को फाड़ती है और मेरे जख्म पर बांधती है और फिर फरमाती है, बेटा जल्दी उठो और क़िताल में मशगूल हो जाओ। जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चश्माने मुबारका से जब ये मामला देखे तो आपने फरमाया कि ऐ उम्मे उमारा, जो ताकत और जो हिम्मत तुम रखती हो वो किस में है? इसी दौरान जिस शख्स ने मुझे जख्मी किया था वो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वार करने के लिए आगे बढ़ा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरी वालिदा से फरमाया कि यही वो शख्स है जिसने तुम्हारे बेटे को जख्मी किया है। फिर मेरी वालिदा तलवार निकालती है और पिंडली पर इस कदर वार करती है कि वो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदम के पास गिर पड़ते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया और आपने फरमाया कि ऐ उम्मे उमारा, तुमने अपने बेटे का किसास और बदला खूब लिया है। हज़रत उम्मे उमारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमारे लिए दुआ फरमाएं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथों को दुआ के लिए उठाते हैं और फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा अजअलहुम रुफ़क़ाई फिल जन्नह, ऐ मेरे मौला, इन सब को जन्नत में मेरा रफीक बनाना। जब आपने ये दुआ की, हज़रत उम्मे उमारा खुश होती हैं और फरमाती हैं
کہ ہر وہ مصیبت جو اس دعا کے بعد مجھے پہنچے کوئی مذائقہ نہیں.